کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، آپ دو منٹ کی ہم میں طے جب کر لیتے بولوں ہیں، نا بس تو دو میرے منٹ بیچ میں مت بولنا، پہلے بول ایسا لو۔ نہیں ہوتا، دو منٹ کی ہم طے کر لیتے ہیں وقت، ٹھیک ہے؟ ہاں ایسا تو نہیں تم 2 منٹ بولتے رہو بول کہ لیے ہم تم کہ نہیں بولے؟ ایسا نہیں ہوتا، دو منٹ کی ٹائم ہوگا، 2 ہاں منٹ تو کرو، تمہارا، ٹائم لگاؤ، میں نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ اور 2 لگاؤ منٹ ٹائم۔ میرا، تم نہیں بولو گے میرے ٹائم پہ، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں اور اگر خلاف ورزی کی ہے تو تمہاری شکست۔ ہاں تو چلیے، بول اور لیے نا دوسرا تم، کوئی نہیں بولے گا۔ دوسرا، اگر لگا دو، کوئی ٹائم بھی لگا بات دو۔ پڑھو گے، ہاں کوئی بھی چیز پڑھو گے تو اس کا حوالہ ہمارے پاس بھیجنا پڑے گا، اور میں جب پڑھوں گا تو میں آپ کے پاس بھیجوں گا وہ ابھی حوالہ۔ شرطیں چھوڑو، 2 منٹ نہیں خالی نہیں، طے یہ کرو، شرط نہیں ہوگی، کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ پہلے اب یہ آپ 2 منٹ دعویٰ کرو، طے آپ کر کا لو، دعویٰ پہلے کیا 2 ہے؟ منٹ۔ ہاں آپ کا اب دعویٰ پیش کرو اپنا۔ ہاں میں دعویٰ پیش کروں گا، میرے بیچ میں مت بولنا، ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں بولوں گا، 2 منٹ ہاں ہو گیا اگر طے، تم میں 2 بولے، منٹ نہیں بولوں گا۔ اگر تم بولے دعویٰ تو، پیش کرو۔ اگر تم بیچ میں بولے تو اشرف تھانوی جیسے جہنمی ثابت ہاں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر میں نہیں بولا تو تیرا مجدد کافی ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ نہ، مانے گا؟ اگر تم کیوں نہیں بولے تو اپنی کیوں شرطوں تو پہ سر برقرار کارروائی رہو میں گے، نہیں کر سکتا؟ تم نہیں بولے تو میں نہیں شرطوں پہ کر، اگر برقرار میں نہیں رہو بولا گے، تو اگر تیرا شرط توڑی مجدد تو جو ہے تھانوی کافر ہو جیسے جائے گا۔ جہنمی ثابت ہو جاؤ گے۔ ہاں دیکھو، ابھی یہ میرے بیچ تیرا میں نہیں تیرا بولنا، یا مجدد بولنا کہہ ہے رہا ہے تھوڑا؟ کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، اتنا تیرا ڈر مجدد رہا کہتا ہے ہے یہ کہ وہ عمر جو عذاب میں بھی ہے، مبتلا ہے۔ اتنا ڈر رہا ہے، اللہ کی بخشش میں مجھے وہ بولنے کہہ رہا تک ہے نہیں کہ میں دیتا۔ عذاب میں مبتلا عز ہوں، تیرا الایمان کے مجدد عذاب میں وقال، اس مبتلا کا ہے۔ تھانوی جو ہے وہ ابو دعویٰ جہل پیش سے کر، دعویٰ نیچے پیش والے کر، طبقے میں گیا ہے۔ دیکھو دعویٰ پیش کر، دعویٰ پیش کر۔ خاموش رہنا تو خاموش رہے، تھوڑا صبر سے نہیں تو کام لینا، دعویٰ مر پیش کیوں کرے گا، رہا ہے؟ اس کے بعد دلیل پہ ثابت ہوگا نا۔ آرام سے بات دعویٰ کرو۔ پیش کرو، میں تھوڑا سا دعویٰ پیش کرو۔ سائلنٹ ہوں۔ ہاں تو میں امن یہ رضا کہہ رہا تھا، قادری سنو آیا پہلے، ہے، دعویٰ نہیں پیش کر رہا ہے میں ڈر یہ کے کہہ مارے۔ رہا ہوں کہ تو دعویٰ پیش کر، تھانوی جیسے مر کیوں رہا ہے، طریقے سے بات دعویٰ، کرنا۔ ارے یار میرے بھائی دعویٰ تو پیش کر پہلے، کیا ہاں تو دعویٰ ہے؟ خاموش تو رہنا، تھوڑا صبر کی تو تھام لے، تبھی تو پیش کروں گا، کہ تو بولتا رہے گا چلتی ٹرین میں پیش کر دوں، ابھی تیرے دیکھو گھر میں میں پیش کر خاموش دوں ہوں، کیا پھر بھی پلیٹ میں دعویٰ رکھ نہیں کے؟ پیش کر رہا ہے تیرے یہ گھر میں بریلوی پیش جاہل، کر دوں دعویٰ نہیں پلیٹ میں پیش رکھ کر کے؟ رہا ہے، 2 میں منٹ خاموش خاموش ہوں، رہ بیٹھا پہلے، ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں تیرے گھر میں پیش کر دوں پلیٹ میں رکھ کے؟ تو خاموش رہنا، بیچ میں مت بولنا۔ ارے تو یوسف بول نا، بھائی میں بڑھ نے بڑھ یہ کر کہا بول۔ تھا، ہاں بیچ میں مت بول، یوسف بھائی سن رہے ہو؟ سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ غیر اللہ سے مدد پہ میرا وہی عقیدہ ہے جو ان کے گھر میں اشرف تھانوی کا تھا، جی وہی عقیدہ ہے میرا، اس کو میں ثابت کروں گا، بالکل۔ کیونکہ اشرف علی تھانوی بھی اپنی اس میں کتاب میں لکھتا ہے دعویٰ کہ، پیش کرو، پھر سن دلیل پہلے، دینا۔ وہی دعویٰ، دعویٰ دعویٰ، پیش کر رہا ہوں، سن لے، دعویٰ پیش کرو، دعویٰ دعویٰ، پیش کر چپ دعویٰ۔ رہا رہو ہوں۔ یار، تم اپنی باری میں ارے بولو آپ نا۔ دعویٰ یہ تو پیش دیکھو، کرو یہ پہلے، ڈر اس گیا، طرح یہ بات ڈر نہیں گیا، ہوتی، دیکھو اس طرح یہ بات نہیں دیوبندی، ہوتی، عمر دعویٰ دیوبندی کے ڈر بغیر گیا، دلیل نہیں، دعویٰ، یہ دعویٰ عمر پیش کرو۔ دیوبندی ڈر گیا، دیکھو ایسے ارے ڈرتے میرے ہیں، یہ بھائی دعویٰ دیوبندیوں تو کے پیش اندر کر دو نا، ہمت نہیں ہے کہ دعویٰ وہ تو سن پیش کرو۔ سکے، دعویٰ یہ ہی پیش دعویٰ کر نہیں رہا ہوں، پیش کچھ کرے گا۔ چائے پیش نہیں کر رہا ہوں دعویٰ ہی تمہیں۔ پیش کر ہاں رہا ہے دعویٰ یار، پیش، سنو تو ارے وہ تم بیچ کھانا میں پیش میں نہیں کر تمہارے رہا ہوں، بوائی بھی ہو دعویٰ گیا ہی ہے۔ پیش ارے کر رہا ہوں، دعویٰ تو پیش شربت کرو نہیں پلا بھائی، سکتے۔ دعویٰ پیش کرو، اس طرح اچھا بات نہیں ہوتی بغیر دعوے ٹھیک کے۔ ہے، بغیر رہے گا تو دعوے پہ میں بات پیش ہوتا ہے کروں گا، کیا؟ تیرے بغیر گھر میں دعوے پہ پیش کر بات دو نہیں جا ہوتا، کے دعویٰ پیش کرو، پارسل، دعویٰ پیش کرو۔ تو خاموش تو رہے۔ ہاں تو ابھی میں تو کہاں دعویٰ تھا، پیش کرنا بھائی۔ میں تھانوی کی ہاں کتاب پہ تھا، نہیں، تو دعویٰ تھانوی پیش نے کرنا لکھا پہلے، ہے کہ دعویٰ پیش قبر کر، پہ جا کے اور پیر دعویٰ پیش صاحب کر۔ کی قبر پہ کھانا مانگنا، یعنی کہ پیر صاحب میری مدد کر دو، میں بھوکا ہاں ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ ہم جیسے تھانوی کا ہے یہی ہمارا ہے، ہم بھی اولیاء اللہ کے، نبی علیہ السلام کے مزار شریف پہ جا کے، جیسے حوالہ پیش البانی کرو، رحمۃ اللہ حوالہ علیہ پیش کا ہے کرو، اور تھانوی حوالہ کا بھی پیش ہے، کرو، ویسا ہی ہمارا حوالہ بھی ہے۔ پیش۔ ہلو، ارے عمر سنو، دیوبندی، میں نے جو اپنا دعویٰ بولو۔ پیش کیا تھا اشرف علی تھانوی کی کتاب سے کہ جو مزار میں ہوتے ہیں ان سے مانگنا جائز ہے، اس کا تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہاں پیش کیا تھا؟ نہ کتاب پیش کیا، جھوٹ بول کے بھاگ گیا، یوسف کیا بھائی، کہوں؟ ان کو ہاں ان کو دلیل سینڈ کرو۔ جھوٹ اچھا بول میں کے بھاگ گیا۔ کر رہا ہوں، امداد ہاں المشتاق والی نا۔ ہاں بھیجو دعویٰ انہیں، کیا ہے بھیجو۔ تمہارا؟ کیا تم نے کیا بولا تھا؟ ہاں میں نے یہ بولا تھا کہ جو مزار میں ہے ان سے مانگنا جائز ہے،
यही चीज अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में भी लिखी है। तो जो हुक्म अच्छा, तुम मुझ उन्होंने पे कहा, लगाओगे, जो तुम हुक्म मुझ पे लगाओगे वो अशरफ थानवी पे लगेगा। तो उन्होंने जायज लिखा है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हाँ, ने? पढ़ो पढ़ो, अपने पीर का वाकया लिखा उनने। का वाकया क्या लिखा? उन्होंने जायज कहा है? पीर का वाकया थोड़ी है वो। किसका है? अरे झूठ पे झूठ बोलता और किसका बोलता है कि तो किसका मैं- है? अच्छा, तुम्हारे अंदर झूठ किसका मक्कारी वाकया के है? अलावा हाजी इमदाद उल्लाह मुहाजिर मक्की कौन है? अशरफ थानवी के। अच्छा पढ़ो अभी, अच्छा पढ़ो, हजरत हाजी इमदादुल्लाह कह की जायज है क्या मांगना? तुमने जो नहीं, बोला नहीं, है किसका कि है ये? हजरत थानवी ने जायज, अरे सुनना गड़बड़ कर रहा है। तुमने कहा ना हाँ। हजरत थानवी ने कहा कि जायज कहा है। इसका तो मतलब सुना है तुम्हें बात को। मालूम था ये वाकया लिखा हुआ मौजूद है, तुम झूठ बोल रहे इबारत थे कि पढ़ के मुझे सुना, भेजो। इबारत इबारत पढ़ के एक मिनट, सुना, एक मिनट, झूठ बोल रहा है। इसका आप मतलब इबारत तुम्हें पढ़ के मालूम सुना। था कि ये जायज, मतलब ये वाकया लिखा हुआ है। देखो, अच्छा ये किसको लाए? किस हाँ। पागल को लाए यार? ये पागल कर रहा है। पागल मैं बोला, नहीं, इबारत पूरी सुना। देवबंदियों के इबारत मुफ्ती, सुना। उस्ताद और आजम हैं इबारत हम। सुना। अबे तो पहले इबारत बात सुना। की तस्दीक तो अभी कर तेरे ले। मुजद्दिद हाँ, हाँ, वही इमाम ये आजम में मैं तेरे कह रहा मुजद्दिद हूँ। का। उमर देवबंदी सुन, तो ये थानवी ने जायज लिख दिया है, मैं कह बदतमीजी रहा हूँ कर। ना, जायज लिखा है थानवी ने। जायज लिखा है तो वो पढ़ इबारत, वो इबारत हाँ, पढ़। इबारत जायज में लिखा है, हुआ, हाँ जायज सुन, पढ़। इबारत में लिखा है, सिर्फ थानवी ने कहा है कि वली जो होते हैं उनसे करामातें सादिर होती हैं मरने के बाद भी। अब बता, करामात से किसको इनकार है? करामात की बात हो रही है कि तो मांगने इसका की बात मतलब हो इस रही है कि तू वाकये कह को रहा है- लिख के थानवी ने, इस ये देखो, वाकये को ये लिख के मर्दूद सुन, पहले झूठ मर बोल क्यों रहा है, सुन लेना, ये मर क्यों रहा करामात की बात कर है। रहा इसको है और लिखने कहाँ के मांगने बाद की बात थानवी कर रहा कह है कि रहा है, मर्दूद है। एक में मर क्यों रहा है, अभी सुन झूठ ले। बोला तूने अरे माना, मर क्यों रहा है, तूने सुन माना ले। कि तू झूठ बोला। मर क्यों रहा झूठ है, सुन बोला। तो ले पूरी, मर क्यों रहा है। ये इस बताने वाकये है को कि लिखकर ये बात थानवी तो ने इसको कहा पढ़ना नहीं है आता कि वलियों से करामत सादिर होती है, तो पता चला वो इस वाकये को जायज कह रहा है, यानी कि इस वाकये को उन्होंने जायज लिखा है, यानी कि इस वाकये को लिख के कह रहा है कि करामातें हो रही हैं, यानी कि वो कब्र में से मदद कर रहा है, मुरीद मांग रहा है, वो 2-2 रुपए तकिए के नीचे रख के जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इनके नजदीक तो करामत जायज है, लेकिन औलिया अल्लाह से मांगना शिर्क है। मतलब ये शिर्क तो जायज है, करामत जायज होगी। यानी कि मांगने वाले ने मांगा और पीर ने करामत कर दी, तो वो जायज है। तो पीर को चाहिए था कि उस मांगने वाले से बोलते कि तू शिर्क कर रहा है, ये करामत होना चाहिए थी। वो 2-2 रुपए रख के जा रहे हैं तकिए के नीचे, ये करामत हो रही है मांगने पे। तो ये तो शिर्क हो रहा था खुला। शिर्क में करामत जायज है अमान, ये जायज है शिर्क में करामत। यानी कि मजार पे गए और वहां मांगा, अगर उनने दे दिया तो करामत है, तो जायज है। उनने नहीं दिया तो शिर्क है। शिर्क का इतना भी नहीं होगा। हाँ, वो तो शिर्क नहीं होगा, अगर उनने मांग लिया और उनने दे दिया पीर ने, और तो सबसे शिर्क बड़ी नहीं बात होगा। ये कौन सी पिक्चर है? अमान, और सबसे बड़ी बात अमान, शिर्क अल्लाह की जात में शरीक करना, तो अब इसका मतलब कुफर करना, ये करामतन जायज है। वही तो सहरान भाई, अब वो मुरीद जाके उनकी कब्र पर मांग रहा है, तो मुरीद के मांगने पर वो दे रहे हैं। थानवी कह रहे हैं कि ये देखो पीर से करामत हो रही है, तो ये करामतें होती हैं। यानी कि थानवी ने जो मजार पे उनने मांगा और उन्होंने दिया, इस सारी चीजों से रिजल्ट निकाल के करामत का कह रहा है ये सही है, और उस वाकये को किताब में लिख दिया। यानी कि पता चला ये शिर्क जो हो रहा था मजार पे मांगने वाला, इसको थानवी ने करामतन जायज कहा। यानी कि शिर्क को थानवी ने जायज कहा करामत के बतौर, तो थानवी मुशरिक साबित हो गए, मुरीद भी काफिर हो गया, मुरीद भी मुशरिक हो गए। इन देवबंदियों के बकौल ये थानवी और ये मुरीद सब मुशरिक हो गए। वही तो, और वो तो भाग ही जाएगा कॉल काट के। लगाओ उसको, फिर से लगाओ। फिर लो उसको। अरे देख रहे हो सहरान भाई? अमन भाई, अरे उसको ले लिया जाए, जमील को। एक मुफ्ती देवबंद हैं, उनको लगाऊं, अब्दुल रहमान। जमील से बात हो गई है, उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालेंगे इंशाल्लाह। इसी को लगाओ दोबारा, इसी को। एक मुफ्ती देवबंद है, उसको, उनको लगाना बाद में, पहले इसको लगाओ। अच्छा सहरान भाई, जब हम ये कहते हैं कि कोई नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक पे जाके यहाँ से पुकारता है तो वो मदद करते हैं, तो इसको ये देवबंदी क्या कहते हैं कि नहीं ये शिर्क है और नबी अलैहिस्सलाम मदद नहीं कर सकते। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन थानवी ने अपनी किताब में लिखा अपने पीर का वाक़या कि मुरीद उनसे खाना मांग रहा है और पीर साहब उनके तकिए के नीचे रोज 2-2 रुपए रख के जा रहे हैं।
तो ये सब जायज हो गया है, ये सब करामातें हो रही हैं, तो ये शिरक नहीं है। हाँ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये देवबंदी कितने बड़े मक्कार होते हैं। उमर सुनो, बात सुनो। अरे देवखानी उमर मत भागना नहीं है, उमर देवबंदी भागना नहीं है। पकड़ो उमर को, पकड़ो देवखानी ले गए। फिर से लगाओ, फिर से, इससे 2 मिनट तय करो। सहरान भाई ये क्या करता है, ये सिर्फ बड़बड़ करता है और सामने वाले को बोलने नहीं देता। मैं जयपुर था पिछली बार, तो जयपुर में मैं था, तो मैं इससे कह रहा था कायदे से बात कर ले, तरीके से बात कर। सुन ही नहीं रहा, मेरे बीच में बोले जा रहा है, क्योंकि वहां मैं बोल नहीं सकता था ज्यादा, कहीं बैठा हुआ था। बात है ये तरीके से बात करना है। सुनो उर्सुफ भाई सुनो भाई जी, किसी अच्छे आलिम को लेके आओ, इस महाजाहिल जो आलिम है, बिल्कुल आलिम हो, क्या आलिम हो, आलिम किसे कहते हैं? सनद पर कितने जन बोल रहे हैं अपनी सनद पर। अरे यार बोलने नहीं दे रहा, बोलने तो दे पहले। हाँ बोल। आलिम की तारीफ क्या है? हाँ आलिम की तारीफ क्या है? ये देखो, ये ऐसी बात हो गई, मैंने कहा मैं फार्मेसी डिग्री मेरे पास मौजूद है और मैं समाज से कह रहा हूँ कि तुम मुझे बता फार्मेसी की डिग्री किसे कहते हैं। अरे तू बता, तू आलिम है, तू बताएगा। तू आलिम है उमर, तू बताएगा। तू बताएगा। कौन मुनाजिर कौन है तुम्हारी तरफ? नाम उसका बताओ मुनाजिर। हाँ चल, आप तू ये बता कि आलिम किसे कहते हैं, चल कुरान और हदीस से। मुनाजिर कौन है तुम्हारी तरफ है, ये मुझे बता। मुनाजिर मैं हूँ। क्या नाम है? अमन अली कादरी। 2 मिनट की बात होगी, अगर 2 मिनट के अंदर मेरे तो बोल और जो भी बोलेगा उसका आवाज देगा असल किताब से, ठीक है? और कोई बदतमीजी नहीं करेगा, सीधे सीधे बात होगी। कबूल है इस पे? बिल्कुल। हाँ तो माशाअल्लाह। तो तुम्हारा 2 मिनट अभी है, तुम दावा करो, क्या दावा करना है तुमको? दावा करो। हाँ। दावा पेश करो। मेरा दावा ये है कि वलियों के मज़ार शरीफ पर मांगना और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस्तिआनत तलब करना, उनसे अर्ज करना, मांगना, ये सब जायज़ है, ठीक है? क्योंकि वो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से ही मदद करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको अता किया है, उनको वो पावर दी है कि वो अपने चाहने वालों की मदद कर सकें। और यही चीज अशरफ थानवी की किताब में भी लिखी हुई है, ठीक है? तो ये मेरा दावा है। अब जवाब दावा उमर पेश करेगा। चलो उमर शुरू हो जाए। दावा पे दलील होता है कि ऐसे ही होता है? पहले दावा होता है, फिर जवाब दावा होता है, फिर दलील होती है, फिर जवाब दलील होती है। ये आलिम है, ये देखो उसको पता ही नहीं है। चल जवाब दावा पेश कर। अच्छा, तनकीद पहले होती है या जवाब दावा पहले? अरे तुझे कुछ पता है कि नहीं पता, सब हमसे ही पूछेगा। चलो ठीक है, जवाब दावा मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद तुमको अपने दावे पे दलील देना पड़ेगा, ठीक है? तनकीद करेंगे। वो तनकीद कैसा, जवाब दलील कैसा देंगे रे? मैं तो तनकीद करूंगा ना। ये अपने मुजद्दिद की जबान लेकर कौन आया है, फालतू बोल रहा है? जब ये तेरा मुनाजिर एक है तो अच्छा, तो असफ अली थानी रहमतुल्लाह की जबान तो मतलब कबूल कर रहा है, माशाअल्लाह। गंदी जबान थी ना, अपने मुजद्दिद को गंदी जबान थी थानवी की, गंदी जबान थी। देखो मेरे टाइम पे ये दोनों अभी टाइम शुरू, अभी तो 2 मिनट मेरे भी पूरे नहीं हुए थे। 2 मिनट मेरे कहाँ हो गए थे? हाँ तो तूने मुझे कहा ना बोलने, तो 2 मिनट नहीं दिए थे ना, खाली जवाब दावा पेश करने को कहा था। ये नहीं, मैंने कहा जवाब दावा पेश करो बस, ये नहीं कहा कि 2 मिनट शुरू होते रहे। ये शिकस्त होती है, यही शिकस्त कर करके देवबंदी जिंदा है। इसके अलावा कुछ नहीं देवबंदी को। चल जवाब दावा शुरू कर, और अगर तुझे मेरे दावे पे कोई तनकी करना है तो अभी कर लेना, क्योंकि मैं तेरे दावे पे जब तनकी करूंगा तो बीच में मत बोलना। अच्छा हाँ चलिए ठीक है। जब औलिया कराम से तो कैसी मदद मांगता है कि अल्लाह के बंदे मुझे औलाद अता कर दे, मुझे मालदार बना दे, मेरी ये मुसीबत दूर कर दे, इस तरह मदद मांगता है?
मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदों से अर्ज करता हूँ कि ए अल्लाह के नेक बंदो, मैं मुसीबत में हूँ, लिहाजा आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि मेरी मुसीबत टल जाए। या फिर मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही है, तो आप जब अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वलियों की सुनता है, बेहतर सुनता है, क्योंकि उसी ने कहा है। तो आप अल्लाह से दुआ करें ताकि मेरे यहाँ औलाद हो जाए। बस ऐसे ही कहते हैं। बस माशाअल्लाह। देखिए, तो ये तुम बुजुर्गों से कहाँ मांग रहे हो, तो वो उनसे दरख्वास्त, दुआ की दरख्वास्त कर रहे हो ना कि वो अल्लाह से हमारे लिए ये मांग लीजिए, दुआ कर दीजिए कि हमें अता कर दे। देने वाला तो अल्लाह ताला है, तुम तो अल्लाह से मांग रहे हो कि कर रहे हो। हमने तो उन्हीं से मांगा ना। हमने तो सुनो पहले हमने क्या कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें। तो हमने किन से मांगा कि आप अल्लाह से दुआ करें? हमने तो वली से मांगा कि नहीं आप दुआ करें। हमने तो उनसे अर्ज की। क्या कहते हैं इसको? आपने दरख्वास्त। हाँ, तो अर्ज यानी ये अर्ज। हाँ, तो ये मदद ही तो मांगी है उनकी। क्या है तो ये? अच्छा, ये मदद नहीं है। अच्छा, एक मिनट सुनो पहले, एक मिनट सुनो। यानी कि जब तुम किसी मतलब अपनी माँ से ये कहते हो कि मेरे बाप से आप ये काम को कह दें कि वो कर दे, तो ये आपने अपनी माँ से मदद नहीं मांगी कि आप उनसे जाके ये काम करवा दें? माशाअल्लाह। मदद ही तो है कि कहाँ रह रहे हो, कौन सी दुनिया में रह रहे हो। हाँ, माशाअल्लाह। ये बात हो गई। अब ये समझ में आ गया कि आप जब मदद मांग रहे हो, ठीक है, इसकी मदद है, तो ऐसे दुनिया में आप काफिर से मदद मांगे कभी कि नहीं काफिर मांगे? ये कौन सी बात है? तनकी करो मेरे दावे पर। ये कौन सी पिक्चर चल रही है? तनकी है ये कौन सी तनकी है? तो अरे भाई क्यों नहीं, तुमने मैंने कहा अल्लाह के नेक बंदों से सुनो पहले। मैंने कहा अरे सुनो पहले यहाँ पर। तनकी करो, तनकी। ये दुनिया की बातें मत करो यहाँ। तनकी ही हो रही है ना। ये तनकी नहीं है इसी को। हाँ बिल्कुल, ये तनकी है कि मैं काफिरों से क्यों नहीं मांग रहा हूँ। ये तनकी होती है। क्या हो? तनकी किसे कहते हैं? क्यों वाला इतराज होता है। हाँ, तो ये हाल में देखो, तनकी नहीं पता। सुनो यार मेरे भाई, तुम दुनिया में काफिरों से मदद मांगे होगे, अपनी औलाद से भी मांगे होगे, ठीक है, अपनी ये तनकी है। इसे तनकी बोलते हैं। सुनो, हाँ बिल्कुल तनकी होता है। तनकी कहते किसे? अच्छा ये बताओ। तनकी है कि मसले। हाँ किसे कहते हैं तनकी? अच्छा बता। कर ले। तनकी किसे कहते हैं? हाँ, तनकी कहते किसे हैं? तनकी, लफ्ज तनकी की तारीफ करो। अच्छा, ये तारीफ करना पड़ेगा। तनकी कहते हैं कोई मसले चीज को साफ वाजे हो जाए, ठीक है। हाँ, तो ये साफ वाजे कर रहे हो तुम मसले को। वजाहत को तनकी बोलते हैं। उसकी काफिरों से मदद मांगी है कि नहीं मांगी है, ये दावा साफ वाजे कर रहे हो। मेरे भाई सुनो ना पूरी बात। जब तुमने पूछा तनकी का बताओ, सुनो पहले। मेरा दावा ये है, सुनो, मेरा दावा है कि सुन तो लो पहले। मेरा दावा जो है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, अल्लाह के वलियों से मदद मांगते हैं, इसको हम जायज कहते हैं। अब इस पर तनकी करो, दीगर और बातें मत करो। इसमें क्या कमी लग रही है तुम्हें, वो बताओ। अभी तुमने दुनिया की मिसाल तुमने दी है, तुम यहाँ पे लेके आए हो। तुमने तनकी करी, मैंने उसका जवाब दिया। अब तुम दुनिया में घुसने लगे कि इससे क्यों नहीं मांग रहे, उससे क्या कर रहे। इसका मेरे दावे पर तनकी करो, मेरे दावे पर फालतू बातें मत करो। चलो, तनकी ही तो कह रहा हूँ भाई, मैं ये तनकी कर रहा हूँ। तुमने ये तनकी है। तुम मदद मांगते हो, किसी से मदद मांगना, तो तुम काफिरों से भी दुनिया में किसी से नहीं, काफिरों। ये तनकी है। मुझे बोलने, ये तनकी है। मुझे बोलने तो दे। बिल्कुल, मुझे बोलने। ये तनकी है ही नहीं। मुझे बोलने दे। तनकी क्या है, चल बता तू। अरे मेरा दावा मैंने पेश किया है। अगर मेरे दावे में, मैं बता रहा हूँ, सुनो। मेरे तनकी इसी को कहते हैं जब कोई बात कही जाए तो उस बात को साफ और वाजे करने के लिए सवाल उठाया जाए। मैंने जो दावा पेश किया है, तो इस दावे में तुम्हें क्या ऐसी कमी लग रही है कि जिस पे सवाल उठा के तुम उसको पूरा करो। इसको तनकी कहते हैं। दीगर इधर उधर की बातें मत करो। किसको कहते? जब तुमको पता ही नहीं कि तनकी किसको कहते हैं। किसको कहते हैं? कहते हैं तहकीक और तलाश, सही और गलत की खोज। इसको मतलब तफाउल से वजन करो।
हाँ, तो खराबी से साफ और पाक करना, यानी हाँ, तो किस चीज में तनकी, जब तुम किस चीज में करोगे तनकी? और अरे बोलने अरे सुन, पहले मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। सही और गलत की खोज ताकि दोनों चीज अलग हो जाए। तो तुमने जो मत बयान किया है वो मुबहम है, हम उसकी तहकीक कर रहे हैं। तुमने कहा कि मदद लेना, किसी से कोई चीज की मदद लेते हैं और वही मदद होती है, तो तुम वही मैं बोल रहा हूँ, तुम काफिरों से मदद लेते हो दुनिया में, तो मरने के बाद भी उस काफिर से मदद लेना शुरू कर देते हो। हो गई ना, हो गई ना। आप सुनो मेरी बात। सबसे पहली बात ये, इनने कहा कि तहकीक को तनकी कहते हैं, साफ और वाजे करने को, कि सही और गलत अलग हो जाए। तो अब क्या तुम यहाँ पर तनकी के नाम पर क्या कुरान और हदीस में या फिर यहूद और नसारा की बातें यहाँ लेकर के बैठोगे कि कुरान में हमारे ये सही है, यहूद और नसारा में ये गलत है? नहीं बैठोगे ना। सुन पहले देवबंदी सुन ले भैया, ओ देवबंदी, मैंने कहा कि मैंने दावा पेश किया है। अब तनकी कहते हैं कि मेरे दावे में अगर कोई चीज अधूरी लग रही है तो उसको सवाल उठाकर तू मुकम्मल कर, क्योंकि मैंने दावा पेश किया है तो तनकी इसमें करना थी, यही मैंने कहा था। तो देवबंदी क्या बोला, तनकी इसको नहीं कहते। तो देवबंदी लेके बैठ गया कि तनकी कहते हैं तहकीक को किसी सही और गलत में वाजे करने को। अरे देवबंदी, जब दावा मैंने किया है तो तनकी इसमें होगी ना। देवबंदी लेके बैठा है कि सही और गलत। अरे तो क्या तू यहूद और नसारा की लेके बैठेगा यहाँ पर, या फिर गैर मुस्लिमों की तमाम की लेके बैठेगा यहाँ पर? चूंकि दावा मैंने पेश किया है तो तू मेरे दावे में ही तो तनकी करेगा कि इसमें कौन सी चीज अधूरी रह गई है। तो वही मैंने कहा, तो देवबंदी कह रहा है इसको तनकी नहीं कहते। देवबंदी पागल ही होता है। अब मैंने तुझसे कहा, अब तू कह रहा है सुन ले पहले, अब मैंने तुझसे तेरे सामने दावा पेश किया कि हम अल्लाह के नेक बंदों से और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगते हैं और वो हमारी मदद करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें वो पावर दी है, वो हमारी सुनते हैं और अल्लाह से अर्ज करते हैं। तो अब इस जरिए हम मदद मांगते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। अब इसके अंदर अगर तुझे कोई कमी लग रही थी तो वो पूछता कि इसमें ये कमी लग रही है, ये बताओ। ये मत करके तुम काफिरों से मदद मांगते हो कि नहीं मांगते, ये टॉपिक ही दूसरा है। कि वो जिंदा हो मुर्दा हो तो मांगते हो कि नहीं, ये टॉपिक ही दूसरा है। समझ गया? इसमें तनकी कर, बेवकूफ मत बन, क्योंकि तुझे तनकी तक नहीं आती। तू आलिम बना घूम रहा है, तुझे तनकी तक नहीं आती। अब मैं तुझसे कह रहा हूँ देवबंदी, अमन अली कादरी के सामने तनकी करने की हिम्मत किसी देवबंदी की नहीं होती। तू तो फिर भी किसी खेत की मूली नहीं है, थानवी तक की हिम्मत नहीं है। अब तुझे चाहिए तू तनकी कर, नहीं तो अपना जवाब दावा पेश कर। तनकी का मसला नहीं, मतलब नहीं मालूम है इसको। मैंने कहा तनकी का, इसको तनकी तक नहीं बताती कि तनकी किसे कहते हैं। तनकी कौन से बात से आता है, चल बता जरा। इसको ये तक नहीं पता कि तनकी किसे कहते हैं, और यहाँ पर ही खुरापात नहीं कर रहा है बैठ के। अपना जवाब दावा पेश कर या फिर मेरे इस दावे पे तनकी कर। तनकी कौन सा तनकी तुझे मैंने बताया, तनकी तुझे आती तक नहीं है, तुझे ये तक नहीं पता तनकी किसे कहते हैं। ये जाहिल कहीं का, इसको ये तक नहीं पता कि तनकी किसे कहते हैं और किस चीज में तनकी की जाती है। कह रहा है सही और गलत को वाजे करने के लिए तनकी की जाती है। अबे बेवकूफ देवबंदी, जो बात चल रही है उसको मुकम्मल करने के लिए तनकी की जाती है। मतलब क्या उसका? हाँ, ताकि तू अपने दावे में से भाग जाए। थानवी की जो इबारत उसने लिखा है कि मजार पे मांगना जायज है, वहां से तू भाग जाए। मैं तुझे यहाँ तनकी की तारीफें बताता फिरूं और आलिम तू बना घूम रहा है। मतलब आलिम की डिग्री तू लिए घूम रहा है और मैं तुझे तारीफें बताता फिरूं। अभी यहाँ तक तो मैं तुझे सिखा दिया, आगे भी मैं तुझे सिखाऊं। मैंने कहा किसी भी देवबंदी में हिम्मत नहीं है कि वो अपना दावा पेश कर दे। खाली चल अपना दावा बता, जवाब दावा बता। थान अच्छा वो देख, कासिम नानतवी कब्र के अंदर से निकल के आके अपने देवबंदियों की मदद करता था मुनाजरे में, दलील मेरे जिम्मे। थानवी नानतवी अपनी कब्र तोड़ के और अपने देवबंदियों की मदद करता था मुनाजरे में, इसकी दलील मेरे जिम्मे। क्योंकि देवबंदी हर जगह फंस जाते थे तो उसको कब्र में से आना पड़ता था। अशरफ थानवी ने अपनी किताब में लिख दिया कि मजार पे जाके पैसे
या फिर खाना, ये मदद मांगना सब जायज है, करामत है। तो थानवी देवबंदियों के फतवे से मुशरिक हो गया। आज तक देवबंदी उसे बचा नहीं सके, आज तक देवबंदी अपने थानवी को नहीं बचा सके। प्लस थानवी ने जो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की थी कि उनका इल्म जानवरों पागलों जैसा, माज़अल्लाह, थानवी अभी उसी कुफर के फतवे से नहीं निकला था। तो जो देवबंदी होते हैं उन्होंने भी थानवी के ऊपर कुफर का फतवा लगा दिया। फतवा ये था कि जो भी नबी अलैहिस्सलाम से मांगेगा वो मुशरिक है, या वलियों से मांगेगा मुशरिक है। तो थानवी ने अपनी किताब में वलियों से मांगने को जायज लिख रखा है कि ये करामातन है। तो देवबंदियों के फतवे से जो थानवी था ये खुद मुशरिक साबित हुआ सबके सामने। तो पता चला ये उमर देवबंदी ने थानवी को खुद मुशरिक साबित कर रखा है, और जितनी भी देवबंदियत है सबको खुद मुशरिक साबित कर रखा है। सारे देवबंदियों ने खुद अपने ही अकाबिरों को मुशरिक साबित कर रखा है। कासिम नानतबी ने भी लिखा है कि अगर अल्लाह की अता का अकीदा रखा जाए तो मजार वालों से मांगना जायज है। कासिम नानतबी भी मुशरिक और काफिर साबित हुआ देवबंदियों के अकॉर्डिंग। इन देवबंदियों ने जितने भी इनके अकाबिर थे सबको मुशरिक साबित कर रखा है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो थे उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगने को जायज लिखा है। देवबंदियों के मुताबिक वो भी मुशरिक साबित हुए। और अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद मांगने को जायज लिखा है। तो पता चला कि ये देवबंदी जो ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगना शिर्क है या वलियों से मदद मांगना शिर्क है, तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ये दोनों भी मुशरिक हुए। और मजे की बात तो ये है कि थानवी ने अपनी इमदादुल मुश्ताक में पूरा वाकया अपने पीर का नकल कर दिया कि मुरीद ने मांगा और पीर ने अता किया, 2-2 रुपए करके दिए। तो पता चला कि ये थानवी इस वाकये को लिख के और इसको करामतन जायज कह के मुशरिक हो गया देवबंदियों के बकौल। पूरी देवबंदियत इन फतवों से, इन फतवों की जद में आ गई, क्योंकि इन लोगों ने अपने अकाबिरों ही को मुशरिक बना दिया और देवबंदी खुद भी काफिर और गुस्ताख साबित हुए। अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदद मांगने को जायज लिखा। तो पता चला अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ये भी मुशरिक हुए देवबंदियों के फतवे से। अशरफ थानवी ने पुकारा, या रसूल किबरिया फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफा फरियाद है। ये नशरुद्दीन में थानवी ने अपनी लिख रखा है। तो थानवी देवबंदियों के अकॉर्डिंग मुशरिक और काफिर साबित हुआ। और इमदादुल मुश्ताक में जो थानवी ने ये वाकया लिखा उसके बकौल भी थानवी मुशरिक और काफिर साबित हुआ। अभी थानवी ने जो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की थी उसी से बाहर नहीं आ पाया था, लेकिन थानवी के ऊपर इन देवबंदियों ने खुद भी शिर्क का फतवा लगा दिया। यानी कि एक तो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने की वजह से थानवी काफिर हुआ, फिर देवबंदियों ने ये जो कुफर का और शिर्क का फतवा लगा रखा है कि जो नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह के वलियों से मदद मांगेगा वो मुशरिक है। इस फतवे की जद में भी थानवी आ गया। तो पता चला थानवी उस गुस्ताखी से तो सुन्नियों ने उस पर कुफर का फतवा लगाया था, उलमा हरमैन शरीफैन ने, सब ने, उलमा दीगर जितने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदे हैं, जो उलमा उस वक्त मौजूद थे अल्लाह वाले, सब ने थानवी को काफिर कहा। अब वो चीज जो थानवी काफिर था, अब वो चीज देवबंदियों ने भी एक्सेप्ट कर ली कि थानवी काफिर नहीं मुशरिक है, क्योंकि थानवी ने वलियों से मदद मांगी है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से भी मदद मांगी है। तो थानवी यहाँ मुशरिक हो गया। अच्छा, देवबंदी काफिर क्यों है? देवबंदियों ने जो थानवी ने नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की थी उस पर देवबंदियों ने उस पर कोई फतवा नहीं लगाया, उसको जायज कहा उस गुस्ताखी को, तो देवबंदी काफिर हुए। लेकिन देवबंदियों ने थानवी पे फतवा एक मुशरिक वाला लगा दिया, शिर्क वाला, मतलब उनने मदद मांगने को जायज लिखा है। तो ये शिर्क वाला फतवा थानवी पे जाकर के लग गया। तो पता चला ये थानवी तो गया ईमान से देवबंदियों के अकॉर्डिंग। अब रह गई उसकी रशीद अहमद गंगोही की बात। तो पता चला कि रशीद अहमद गंगोही ने अपनी किताब में लिखा है कि अल्लाह
रब्बुल इज्जत झूठ बोलने पे माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कादिर है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जुबान भी कांप जाती है बोलने में, तो झूठ बोल सकता है। ये उसने लिखा, रशीद अहमद गंगोही ने ये बात अपनी किताब में लिखी और कहा कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो वो इस वजह से काफिर साबित हुआ। ये रशीद अहमद गंगोही इस वजह से काफिर साबित हुआ क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में उन्होंने गुस्ताखी की। तो पता चला ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करते फिरते। अब आ जाते हैं शाह इस्माइल दहलवी के ऊपर। वो इस्माइल दहलवी जो पागल था उसने क्या लिखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता। ये तक़वियतुल ईमान में आज तक लिखा हुआ है। ये जाहिल देवबंदी, पागल देवबंदी आज तक उसको छाप रहे हैं। तो ये देवबंदी उसका दिफा भी कर रहा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। तो अब देवबंदियों में दो तबके हो गए, एक वो कहते हैं कि वाकई मिल गए और एक कहते हैं कि मिले नहीं है, खाली जिस्म मुबारक रखा हुआ है। तो ये दोनों उसकी इबारत का दिफा करते रहते हैं और दोनों की दोनों काफिर हैं ये देवबंदी। तो पता चला कि हम जो ये कहते हैं कि अल्लाह के वली और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो हम मांगते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता ही से हमें देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अता करता है और वो हमें देते हैं और फिर वो अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह हमारी सुनता है। अब कोई शख्स अगर डायरेक्ट ये कह रहा है कि ए अल्लाह के वली मेरे यहाँ औलाद नहीं है तो लिहाजा मेरे यहाँ औलाद हो जाए, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज कर रहा है कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है तो लिहाजा मेरे यहाँ औलाद हो जाए, अगर वो ये अल्फाज भी बोल रहा है फिर भी उसके दिल के अंदर यही अकीदा है कि ये जो हमारी मदद करेंगे तो ये अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह औलाद अता करेगा, तो ये उसके दिल का अकीदा होता है। अगर उसने जुबान से वो अल्फाज भी नहीं बोले हैं तो दिल का अकीदा ये होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की पहली हदीस शरीफ है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पे है। तो उसकी नियत जो होती है वो ये होती है कि जब कोई भी शख्स ये अल्फाज अदा करता है कि ए अल्लाह के वली हमारे यहाँ औलाद हो जाए, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे यहाँ औलाद हो जाए, तो बात यही होती है कि उसके दिल का अकीदा यही होता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें औलाद अता करेगा, या कोई भी मुसीबत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे टाल देगा। और जो ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन वलियों को दी है तो उसके जरिए वो हमारी मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वाज़ेह अकीदा है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन देवबंदियों से बचे, क्योंकि ये देवबंदियों के घरों में भी ये बातें लिखी हुई हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के वलियों से उन्होंने भी मांगा है, इनकी देवबंदियों ने भी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। सारी दलीलें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इनके फतवों से इनके खुद अकाबिर मुशरिक और काफिर साबित होते हैं, तो उनको बचाने के लिए इनके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन ये आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर झूठ बांधते रहते हैं, उनकी किताबों पर झूठ बांधते रहते हैं, झूठी झूठी तोहमतें लगाते रहते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। तो इनसे अपने बच्चों को बचा है। जी जी, वो तो भाग ही जाएगा सहरान भाई। देख रहे हो, उसको तनकी हम सिखा रहे हैं, दावा जवाब दावा हम सिखा रहे हैं, कुछ पता नहीं, आलिम बना घूम रहा है और आलिम बना घूम रहा है। देखो, और अपने शहर आलिम जिसे कहते कहते। हाँ हाँ, वो देखो, तो यही तो इन देवबंदियों के अंदर कुछ नहीं है, ये सिर्फ गुमराह करते हैं लोगों को बस। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा